क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी आप कौन बात कर रही हैं? सर मैं हुमैरा बात कर रही हूँ। हुमैरा बात कर रही। मैडम हुमैरा, अब आवाज़ सही है? पहले कट रही थी। जी अब बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, चलो ठीक है। अब बाकी के लोग आ जाएं तो फिर आपका लेक्चर शुरू करते हैं। ओके सर। ठीक है। जी माशाल्लाह, राना हमाद साहब आज तशरीफ लाए हैं। राना साहब किधर से रास्ता भूल गए आप? राना हमाद साहब, कैन यू लिसन टू मी? जी सर, कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। खुशी हुई कि आप लेक्चर में मौजूद हैं। वेलकम। थैंक यू। ठीक है, माइक अपना ऑफ कर लीजिए। ओके सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर का टाइम शुरू होता है तो तकरीबन 3 स्टूडेंट्स ने क्लास ज्वाइन की है। जो लोग अभी तक क्लास में नहीं आए उन्हें काइंडली इन्फॉर्म कर दीजिए कि लेक्चर स्टार्ट्स। कल हम शेक्सपियरियन स्टडीज पढ़ रहे थे। कल हमारा फर्स्ट लेक्चर था शेक्सपियरियन स्टडीज से मुतल्लिक। और ये जो स्क्रीन आपके साथ शेयर की जा रही, जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये हम कल पढ़ चुके हैं। कल हमने शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर के इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि वो कौन था, उसने जिंदगी में क्या कारनामे किए, कहाँ पैदा हुआ, कहाँ उसकी डेथ हुई। और शेक्सपियरियन स्टडीज का खुलासा ये था, कल हमने शेक्सपियर की जो लाइफ हिस्ट्री पढ़ी उसका खुलासा ये था कि बज़ाहिर ये इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत बड़ा नाम है, मगर शेक्सपियर से मुतल्लिक जो भी कुछ लिखा गया है, उसकी जिंदगी से मुतल्लिक, उसकी अचीवमेंट्स एंड कारनामों से मुतल्लिक जो कुछ लिखा गया है वो एक गेस है। इट इज ओनली अ गेस। वो एक गेस है और इसके अलावा कुछ नहीं है। कोई शख्स एग्जैक्टली ये नहीं जानता कि विलियम शेक्सपियर कौन था, कहाँ पैदा हुआ, उसकी जिंदगी के हालात क्या थे। और ये एक हैरानगी की बात है। दूसरी चीज जो हमने कल वाले लेक्चर में डिस्कस की थी वो था जी शेक्सपियरियन एज। इससे मुतल्लिक हमने पढ़ा था कि शेक्सपियरियन एज को एज ऑफ शेक्सपियर कहते हैं। इसके अलावा रेनेसांस पीरियड भी कहते हैं, एल्ज़बेथन एज भी कहते हैं, क्योंकि मलिका एलिज़ाबेथ का दौर था वो।
یہ اس کے 3 نام ہیں ایک ہی دور کے. اس کی اسپیشلٹی یہ تھی کہ کوئین ایلزابتھ کے دور میں انگلینڈ میں پراسپیرٹی تھی، خوشحالی تھی، لبرلزم تھا، لوگ اپنی اپنی بات کو کہنے کے لیے آزاد تھے، انٹرٹینمنٹ تفریح کے لیے آزاد تھے، لوگوں پر کسی طرح کی ریسٹرکشن پابندیاں نہیں تھی. انگلینڈ ایک خوشحال اور پرسکون ملک تھا. لٹریچر کے حوالے سے دیکھا جائے تو لٹریچر میں کچھ بڑے عظیم نام پیدا ہوئے اس دور میں، جن میں ایک خود ولیم شیکسپیئر ہے. اس کے سے پہلے ہم جان ملٹن کو پڑھ چکے ہیں، وہ بھی اسی دور سے تعلق رکھتا ہے. کرسٹوفر مارلو ہمارا اگلا ڈرامیٹسٹ ہے، شیکسپیئر کے بعد ہم نے اس کو پڑھنا ہے، وہ بھی اسی دور سے تعلق رکھتا تھا. تو لٹریچر واز میکنگ پروگریس، ادب بڑی تیزی سے ترقی کر رہا تھا، اور انگلش لٹریچر کے کچھ عظیم ترین رائٹرز اس دور میں زندہ تھے، لکھ رہے تھے. یہ چند ایک باتیں تھی جو ہم نے کل پڑھی سمجھی. کچھ ایک ڈیٹس کا ذکر ہوا تھا، ان کو ذہن میں رکھیے گا، ان کو نہیں بھولانا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں کچھ ایسے کویسچنز پیپر میں پٹ کیا کرتا ہوں جن میں ڈیٹس کا ذکر ہوتا ہے. اب چونکہ ہم نے آج شیکسپیئر کے ڈراما کو ڈسکس کرنا ہے، تو ہم ایلزبیتھن ڈراما کو پہلے پڑھیں گے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایلزبیتھن ڈراما کیا تھا، یعنی اس دور میں کس طرح کے ڈراماز لکھے جا رہے تھے، کیا ٹریڈیشن تھی. تو اس کا خلاصہ میں آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کو تفصیل سے پڑھیں گے بھی. ایک اوور ویو ہے تاکہ بات کی سمجھ آ جائے. انگلش ڈراما، برٹش ڈراما جو کہ انگلینڈ والوں نے پروڈیوس کیا، اسپیشلی یہ جو ایلزبیتھن ڈراما ہے، اس کی جڑیں رومن لٹریچر میں ہے. آپ اپنے پچھلے کسی سیمیسٹر میں، آئی تھنک سیکنڈ سیمیسٹر میں، گریک لٹریچر پڑھ چکے ہیں، اور اس میں آپ نے پڑھا کہ BC بیفور کرائسٹ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے کے زمانے میں اہل یونان نے، گریکس نے لٹریچر کی فیلڈ میں بڑی ترقی کر لی تھی. ان کے ہاں بڑا اعلیٰ درجے کا ڈراما پروڈیوس ہوتا تھا، ایپک پوئٹری پروڈیوس ہوتی تھی. اینڈ دے ور گڈ ریٹرکس. ریٹرکس مطلب وہ بڑے اچھے مقرر تقریر کرنے والے تھے. ڈیموکریسی ان کے پاس تھی، جمہوریت جسے کہتے ہیں. تو جب گریک لٹریچر انگلستان والوں کے ہاتھ لگا، انہوں نے اس گریک لٹریچر کو پڑھا، اس کے ڈراما سے متاثر ہوئے. تو ابتدا میں ڈراما کو استعمال کیا چرچ سے متعلق لوگوں نے. ان کا خیال تھا کہ کرسچینٹی کی تبلیغ کے لیے اور بائبل کی ٹیچنگز لوگوں تک پہنچانے کے لیے ڈراما ایک اچھا میڈیم تھا، ایک ٹول تھا. ریلیجیس ڈراما ابتدائی شکل تھی. اس کے بعد ڈراما انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ بنا. ڈراما سٹیج تک پہنچا. پہلے یہ میلوں میں، گیدرنگز میں، مذہبی مقامات پر پرفارم کیا جاتا تھا. پھر یہ چرچ سے نکل کر، فیئرز اینڈ میلوں سے نکل کر یہ تھیٹر تک پہنچا، جہاں لوگ باقاعدہ ٹکٹ خرید کر ڈراما دیکھنے جاتے تھے. اٹ بیکیم اے سورس آف انٹرٹینمنٹ، تفریح کا ذریعہ بن گیا. اور پھر اس دور میں اتفاق یہ ہوا کہ انگلش تھیٹر کو کچھ بڑے اچھے پلے رائٹرز مل گئے، جن میں ولیم شیکسپیئر اور کرسٹوفر مارلو سر فہرست ہیں. انگلش تھیٹر جو کہ اس زمانے میں تھا جب ولیم شیکسپیئر لکھ رہا تھا، جو کہ ایلزبیتھن ایج ہے، وہ الیکٹرانکس کا دور نہیں تھا. اس وقت بجلی، الیکٹریسٹی کا تصور نہیں تھا، کانسیپٹ نہیں تھا. ڈراما بالکل ایک سادہ سی سٹیج تھی، ایک ریزڈ پلیٹ فارم، بلند جگہ تھی، جہاں کیریکٹرز کھڑے ہو کر اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرتے تھے، بولتے تھے. انہیں بلند آواز میں بولنا پڑتا تھا کیونکہ مائک کا کانسیپٹ نہیں تھا. ہر ایک کیریکٹر اپنے لباس اور اپنی ساؤنڈ سے اپنے آپ کو ایکسپریس کرتا تھا. ایک کیریکٹر جتنی بلند آواز میں بول سکتا تھا، وہ اتنا ہی زیادہ پاپولر تھا، کامیاب تھا. مزید یہ کہ اس ڈراما میں خواتین کا کردار بھی مرد پرفارم کیا کرتے تھے. ابھی فی الحال خواتین کو اتنی آزادی نہ تھی کہ وہ سٹیج پر آئیں اور پرفارم کریں. ہاں البتہ ڈراما دیکھنے والوں میں، اسپیکٹیٹرز میں، تماشائیوں میں خواتین شامل ضرور ہوا کرتی تھیں. اب ہم انہی باتوں کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں تاکہ سمجھ آئے کہ ہم
क्या पढ़ रहे हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पे एल्ज़बेथन ड्रामा की हेडिंग देख सकते हैं। तो आज हम एल्ज़बेथन ड्रामा ही पढ़ रहे हैं। ठीक। The simple definition of Elizabethan theatre and drama is that it is drama written during the reign of Elizabeth I, but that is absurdly simplistic. Elizabethan drama is much more than that. अच्छा जी, कहा गया कि अगर कोई शख्स आपसे पूछे जी व्हाट इज एलिज़ाबेथन ड्रामा, तो सादा सी डेफिनेशन तो ये है कि मलिका एलिज़ाबेथ के दौर में जो ड्रामा लिखा गया वो एलिज़ाबेथन ड्रामा है। लेकिन इस डेफिनेशन को लिखने वाला राइटर खुद ही कहता है कि जनाब ये कुछ ज्यादा ही सिंपल हो जाएगा। From the Elizabethan age come of the most highly respected place in Western drama. Although it is generally agreed that the period began at the commencement of reign of Queen Elizabeth I in 1558 and ended at the Queen's death 1603, but Elizabethan drama ended at the closing of the theatre in 1642. ओके तो एलिज़ाबेथन ड्रामा से मुतालिक कहा गया कि एलिज़ाबेथन ड्रामा का आगाज तो 1558 में हुआ था जब मलिका एलिज़ाबेथ तख्त नशीन हुई। हाँ अलबत्ता ये 1642 तक चलता रहा। इसके बाद 1642 के बाद प्यूरिटन एज शुरू हो जाती है, प्यूरिटनिज्म था। और वो दौर क्या है वो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था जब मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का टॉपिक पढ़ाया था। आपको बताया गया था कि प्यूरिटन्स बड़े रिलीजियस किस्म के फंडामेंटलिस्ट लोग थे जिन्होंने एंटरटेनमेंट की तमाम तर शक्लों पर पाबंदी आयद कर दी थी। तो इस सेकंड पैराग्राफ में हमने एलिज़ाबेथन ड्रामा का आगाज पढ़ा है कि 1558 में मलिका एलिज़ाबेथ जब तख्त नशीन होती है तो उस दौर में ड्रामा का आगाज हुआ सही मानों में। एलिज़ाबेथ I was a powerful resolute monarch. अब इस पैराग्राफ में हमें मलिका एलिज़ाबेथ से मुतालिक कुछ बताया जाता है, मजीद उसकी जिंदगी के उसके दौर के हालात क्या थे, इंग्लैंड किस तरफ जा रहा था, क्या डायरेक्शन थी उसकी, ये थोड़ा बहुत हमें पता चलेगा और ये बड़ा अहम है। Elizabeth was a powerful, resolute monarch who returned England to Protestantism, quelled a great deal of internal turmoil and unified the nation. ठीक कहा गया कि जनाब ये एक मजबूत हुक्मरान थी और इसने नेशन को, कौम को टर्मोइल से, कशमकश से निकाल कर एक सीधी राह पर लगाया। She was also a avid supporter of the arts with Shakespeare. A surge of activity in the theatre. आर्ट्स को, फन की मुख्तलिफ शक्लों को ये खातून पसंद करती थी और इसीलिए थिएटर भी उस दौर में बड़ा पॉपुलर हुआ। During her reign, some playwrights were able to make a comfortable living by receiving royal patronage. कुछ राइटर्स को रॉयल पैट्रोनेज, शाही सरपरस्ती हासिल थी, सरकारी खजाने से उन्हें कुछ नजराना, कुछ वजीफा दिया जाता था ताकि वो दुनिया की मुश्किलात से, अखराजात की परेशानियों से आजाद होकर, रिलैक्स होकर लिख सके। There was a great deal of theatrical activity at court. Even बादशाह के दरबार में ड्रामास परफॉर्म किए जाते थे and many public theatres were also built on the outskirts of London. लंदन सिटी के आसपास, आउटस्कर्ट्स यानी शहर से बाहर मज़ाफात में कई एक थिएटर्स थे। थिएटर वाज अ पॉपुलर पैस्टिम, पैस्टिम मतलब होता है तफरी, एंड पीपल ऑफ ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ अटेंडेड। यानी थिएटर उस जमाने में तफरी हासिल करने का एक जरिया था, वसीला था, और इनफैक्ट ये वाहिद जरिया था डिसेंट एंटरटेनमेंट हासिल करने का। वो लोग जो मुहज़्ज़ब अंदाज में एंटरटेनमेंट, तफरी हासिल करना चाहते थे वो थिएटर का रुख करते थे। इसके अलावा और कोई दूसरा वसीला उनके पास नहीं था। All the women were not allowed on stage. They did attend performance and often made up a substantial part of the audience. इस बात का हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि खवातीन को ऑन स्टेज आने की इजाजत तो ना थी, वो ड्रामास में एज एन एक्ट्रेस तो परफॉर्म नहीं करती थी, लेकिन बहरहाल
ड्रामा देखने वालों में बड़ी तादाद खवातीन की भी हुआ करती थी. Some of the most important playwrights come from the Elizabethan era, including William Shakespeare, Ben Jonson and Christopher Marlowe. ये तीन बड़े नाम थे उस जमाने के. These playwrights wrote plays that were patterned on numerous previous sources, including Greek tragedy, Seneca's plays, Attic drama, English मेरिकल प्लेस वो ड्रामा से जिसका मैंने पहले जिक्र किया है कि सबसे पहले ड्रामा चर्च के हाथ में आया था. चर्च वालों ने इसे क्रिश्चियनिटी की तबलीग के लिए इस्तेमाल किया था. मोरालिटी प्लेस ये भी उसी जैसे थे. एंड इंटरल्यूड्स ये कुछ एक प्लेस थे जो कि ऑलरेडी मौजूद थे मार्केट में. इनसे इंस्पायर होकर सबसे पहले ग्रीक ट्रेजेडी से इंस्पायर होकर लोगों ने ड्रामा लिखना शुरू किया था. Elizabethan tragedy dealt with heroic themes, usually centering on a great personality who is destroyed by his own passion and ambition. ये स्पेशलिटी है जी एलिज़ाबेथन ड्रामा की, जिसको मैं थोड़ा सा टाइम देना पसंद करूंगा. एलिज़ाबेथन ड्रामा की फाउंडेशन बुनियाद चूंकि ग्रीक ट्रेजेडी थी, तो ग्रीक ट्रेजेडी को अगर आपने पढ़ा है सही मानों में, स्पेशली अगर आपने एरिस्टोटल को पढ़ा है, एरिस्टोटल ने ग्रीक ट्रेजेडी और इसके अलावा एपिक ट्रेजेडी एंड एपिक पोएम के रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन किए थे, लिख कर दिए थे अपनी कौम को कि ट्रेजेडी इस तरह की होती है, होनी चाहिए. उसको फॉलो करते हुए जो एलिज़ाबेथन दौर की ट्रेजेडी थी, दैट बिलोंग्स टू किंग्स एंड प्रिंस, वो बादशाहों और शहजादों की कहानियां हुआ करती थी. क्योंकि एंशिएंट ग्रीक्स में ये रिवायत थी, अहले यूनान का ये मानना था कि ट्रेजेडीज सिर्फ बड़े लोगों के साथ रूनुमा होती है, बादशाह और शहजादे और देवता. इनकी ट्रेजेडीज सही मानों में ट्रेजेडीज हैं और इनके साथ रूनुमा होने वाली ट्रेजेडीज से सारी कौम मुतासिर होती है. जबकि जो आम लोग थे, कॉमन पीपल, छोटे दर्जे के लोग, मिडिल क्लास या लोअर क्लास, उनका कोई अमल दखल नहीं था ड्रामास में. उनकी कहानी, उनकी ट्रेजेडी को ड्रामा में पेश किया जाए, स्टेज पर परफॉर्म किया जाए, इस चीज का दूर दूर तक कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. इसी चीज को ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट ने भी कबूल किया. लिहाजा विलियम शेक्सपियर ने जितने भी ड्रामास लिखे सिवाय एक के, ओथेलो उसका नाम है, ओथेलो ड्रामा के अलावा जितने भी ड्रामास लिखे हैं उनके सेंट्रल कैरेक्टर्स, उनके हीरोज बादशाह हैं या शहजादे हैं या आर्मी जनरल्स हैं. ये ग्रीक ट्रेडिशन थी. एक और चीज जो कि ड्रामा में फॉलो की जाती थी, जिसे एलिज़ाबेथन ड्रामेटिस्ट ने तो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया, लेकिन वो ये थी कि ग्रीक ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट था कि ट्रेजेडी should be restricted within the boundaries of 24 hours and the place where a man could travel within 24 hours. यानी ड्रामा की कहानी इतनी होनी चाहिए जो कि 24 घंटे के दौरानिए के अंदर अंदर खत्म हो जाए. इसमें दिन, महीने और सालों का जिक्र नहीं हो सकता. दूसरी चीज, सिर्फ उन प्लेसेस को, उन मकामात का जिक्र करना है जो कि एक दिन के अंदर अंदर सफर किए जा सके, जहां तक एक शख्स एक दिन में सफर करके वापस आ सकता है. बस उतने से मकामात का जिक्र ट्रेजेडी में होना चाहिए. प्लॉट कंस्ट्रक्शन भी हुआ करती थी ट्रेजेडी में, जो बड़ी अहम थी. एक कहानी है जिसका आगाज होता है, फिर वो अपने क्लाइमेक्स तक पहुंचती है, फिर उसका एक सेटिस्फैक्टरी एंड होता है. स्टार्ट, क्लाइमेक्स एंड एंड. इसको एलिज़ाबेथन ड्रामेटिस्ट ने बड़े आला अंदाज में फॉलो किया, तमाम ड्रामेटिस्ट ने फॉलो किया था. तो जिस पैराग्राफ की लास्ट लाइन हम पढ़ते हैं, Elizabethan tragedy dealt with the heroic themes, usually centering on a great personality who is destroyed by his own passion and ambition. इसको मैं डिस्कस कर रहा था. ये चूंकि बड़ी अहम चीजें हैं, मैं जो बातें इस वक्त बता रहा हूँ वो आपके सवालों के जवाब बनेंगे.
اس لیے میں اسی لائن پر رک کر تھوڑا سا تبصرہ کر رہا ہوں. اگلی بات جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ گریٹ ہیروز ہیں. ایک گریٹ ہیرو ہے who is destroyed by his own passion and ambition. وہ جو ایلزبیتھن ڈراماز تھے اور جو گریک ڈراماز تھے ان میں ہیرو کے مد مقابل کوئی ولن نہیں ہوتا تھا. وہاں پر ولن کا کردار ادا کرتا تھا فیٹ اینڈ ایمبیشن آف دا ہیرو. ایک ہیرو کا اپنا ایمبیشن وہ لیجیٹیمیٹ ہے یا الیجیٹیمیٹ ہے, جائز ایمبیشن ہے یا ناجائز ایمبیشن ہے, اس کا پیشن, اس کا جذبہ, اس کے ڈریمز, اس کی تھنکنگ اس کے ڈاؤن فال کا سبب بنا کرتی تھی. ہم نے گریک ٹریجڈی میں جو پہلا ڈرامہ پڑھا تھا وہ کون سا تھا؟ کوئی ایک اسٹوڈنٹ مجھے اس کا نام یاد دلائے گا. میں نے بھی پڑھایا ہوا ہے, آپ نے گریک ٹریجڈی میں پڑھا ہوا ہے. گریک ٹریجڈی میں جو پلیز آپ نے پڑھے تھے ان کا نام بتائیں جی اگر آپ لوگ جاگ رہے ہیں. اوڈیپس ریکس. جی بس ٹھیک ہے, صحیح بتایا آپ نے. ایڈیپس ریکس جو کہ آپ نے گریک ٹریجڈیز میں پڑھا تھا وہ بہترین مثال ہے. ایڈیپس واز اے کنگ, اس کے مد مقابل کوئی نہیں تھا. اس کی اپنی تھنکنگ, اس کا اپنا امیجنیشن اس کے ڈاؤن فال کا سبب بنا. ہی واز ریش, ہی واز فل آف اینگر, غصے میں آ جاتا تھا. یہ چیزیں تھی اور اس کی فیٹ, اس کا مقدر اسے اس کی ٹریجڈی تک لے آیا. لیکن اس چیز کو آج کے دور کا ریڈر نہیں مانتا, لیکن وہ چونکہ کم پڑھے لکھے لوگ تھے, ان کی سوچ بڑی محدود تھی, تو وہ لوگ اس چیز کو پسند کرتے تھے. اور یہی چیز ایلزبیتھن ڈراما میں بھی پیش کی گئی ہے. ایک اور چیز جو کہ ایلزبیتھن ڈراما کی جان سمجھی جاتی ہے, اس کے بغیر ایلزبیتھن ڈراما روکھا پھیکا بیکار تھا, وہ تھا سپر نیچرل ایلیمنٹس. اس کا ذکر شاید کہ نیکسٹ لائن میں ہے کہ the comedies often satirize the faults and jalents of society. اوکے, فی الحال کامیڈیز ہمارا کانسیپٹ نہیں ہے, ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن نہیں ہے. سپر نیچرل ایلیمنٹس باقاعدہ آپ نے سوال کا جواب اس پہ تیار کرنا ہے جب ہم ہیملیٹ اور اوتھیلو کو پڑھیں گے. ایلزبیتھن دور کے لوگ, چونکہ وہ لوگ ہائیلی ایجوکیٹڈ نہیں تھے, تعلیم صرف کچھ امیر لوگوں تک پہنچتی تھی. نچلا طبقہ, مڈل کلاس, لوور کلاس, سب ان پڑھ جاہل ہوا کرتے تھے. Those people believed in supernatural elements. Those people believe in ghosts and fairies and witches. وہ جنوں, بھوتوں, چڑیلوں, پریوں پر یقین رکھتے تھے. ان کا ماننا تھا کہ یہ چیزیں اور ستاروں کی گردش انسانی معاملات کو ڈسٹرب کرتی ہیں. تو سپر نیچرل ایلیمنٹس کا ذکر ڈراماز میں ضرور ہوتا تھا. ہم اب جب کہ ہیملیٹ کو شروع کریں گے, ہیملیٹ کا فرسٹ سین, اوپننگ سین گھوسٹ آف دا کنگ سے شروع ہوتا ہے. ایک مر چکے بادشاہ کا بھوت سامنے آتا ہے اسٹیج پر. ہیملیٹ جو کہ ڈراما کا نام ہے اور ہیملیٹ جو کہ ڈراما کے ہیرو کا بھی نام ہے. ہیملیٹ کے مرحوم باپ کا گھوسٹ, اس کا بھوت, اس کی روح اوپننگ سین میں, ڈراما کے سب سے پہلے سین میں آڈینس کے سامنے آتی ہے, دکھائی جاتی ہے, اور وہیں سے ڈراما کا سسپینس شروع ہوتا ہے. اور ولیم شیکسپیئر کے باقی کے ڈراماز میں بھی کچھ ایسی ہی سچویشنز چلتی ہے. اب آ جاتے ہیں کامیڈیز کی طرف. اس زمانے میں کامیڈیز بھی لکھی جاتی تھی, لیکن کامیڈیز کا ذرا اتنا عمل دخل نہیں تھا. لوگ کامیڈیز کو اتنا اپریشیٹ نہیں کرتے تھے جتنا کہ ٹریجڈیز کو اہمیت دی جاتی تھی. اور کامیڈیز میں بھی جو ایلیٹ کلاس ہے, جو شاہی طبقے کے لوگ تھے, انہی کی بدتمیزیوں کو, گستاخیوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا تھا. تو یہ تھا جناب ایلزبیتھن ڈراما. گریک ڈراما نہیں, ایلزبیتھن ڈراما تھا یہ. اب ہم ایلزبیتھن ڈراما کے ایک ڈرامیٹسٹ کو, دو ڈرامیٹسٹ کو ڈسکس کرنا پسند کریں گے تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ وہ لوگ کون تھے, کیسا ڈراما لکھتے تھے. ایلزبیتھن ڈراما آج ہم نے پڑھا, اس کی کچھ کیریکٹرسٹکس پڑھی. اس کے بعد ایک شخص بین جانسن جو کہ اسکرین پر آپ کے سامنے ہے, اور دوسرا کرسٹوفر مارلو. یہ دو بڑے اہم رائٹرز رہے ہیں اس زمانے کے. اس کے بعد نیچے ولیم شیکسپیئر آ جاتا ہے. ولیم شیکسپیئر کو ہم کل گزرے ہوئے دن میں پڑھ چکے ہیں.
इसको डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, क्रिस्टोफर मॉर्लो को मैं डिस्कस करना पसंद करूंगा, क्योंकि क्रिस्टोफर मॉर्लो एल्ज़बेथन ड्रामा का इब्तदाई राइटर था। सच ये है कि एल्ज़बेथन ड्रामा का आगाज इसी शख्स ने किया था। इसकी जिंदगी का खुलासा क्या है कि इसको थोड़ी जिंदगी मिली, जवानी में मर गया था, बल्कि कत्ल कर दिया गया था, क्योंकि ये एक जासूस के तौर पर काम करता था। बाय प्रोफेशन ही वाज अ स्पाई, और डेफिनेटली जासूस का एंड मौत होती है। इसको जवानी में कत्ल कर दिया गया था। इसने अपनी जिंदगी में चंद ड्रामास लिखे, जिसमें कमोबेश 4 ट्रेजेडीज हैं, और वो 4 की 4 सुपर हिट हुई। इसको पढ़ देखते हैं थोड़ा सा। हाँ, एक और चीज जो कि इसकी जिंदगी से मुतल्लिक बड़ी अहम है, वो ये है कि क्रिस्टोफर मॉर्लो वाज अ क्रिश्चियन, बट ही वाज अगेंस्ट क्राइस्ट एंड क्रिश्चियनिटी। ये शख्स क्रिश्चियन जरूर था, लेकिन क्राइस्ट और क्रिश्चियनिटी, हजरत ईसा और हजरत ईसा की तालीमात, मजहब ईसाइयत के खिलाफ था। कह सकते हैं कि वो अपने मजहब के हवाले से अपने मजहब का मुल्हिद काफिर था, और उसके ड्रामास में इसका बड़ा वाज़ेह जिक्र मिलता है। हिस्टोरियंस लिखते हैं कि जब ये शख्स मर गया तो इसके कमरे से ऐसी बहुत सी तहरीरें मिली थी जो कि एंटी क्रिश्चियनिटी थी, मजहब के खिलाफ जाती थी। क्रिस्टोफर मॉर्लो वाज बोर्न इन कैंटरबरी ऑन February 26, 1564। कैंटरबरी जनाब वही है जिसका जिक्र हमने जेफरी चौसर में पढ़ा था। ये वही कैंटरबरी का इलाका है, इंग्लैंड का है। द एल्डेस्ट सन ऑफ मास्टर शूमाकर जॉन मॉर्लो एंड कैथराइन ऑर्थर उनके वालिद और वालदा का नाम है। मॉर्लो अटेंडेड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, quickly distinguishing himself as a brilliant student. During his time at Cambridge, Marlowe became part of Queen Elizabeth's secret service and carried out several secret missions for the crown. अच्छा जनाब, ये है वो बात जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि he was an agent. ये सीक्रेट सर्विस एजेंट था, एक स्पाई, एक जासूस था, और वो भी क्वीन एलिजाबेथ के लिए, मलिका के लिए काम करता था। और इस सिलसिले में उसने बहुत से एडवेंचर्स भी किए थे। एक स्टूडेंट जो अभी अभी क्लास में तशरीफ लाई है, बड़े मेरा जल्दी आ जाए कीजिए, अब तो लेक्चर टाइम खत्म होने में 13 से 14 मिनट बाकी है। ओके सर मैं पहले आई थी, वो नेट चला गया था इसलिए वो बंद हो गई थी। चलिए सर वो ठीक है एक लड़की पूछ रही है पासवर्ड बता दें। जी। मैंने जब आपको ये क्या कहते हैं यूआरएल नंबर जो शेयर कर दिया, तो फिर पासवर्ड की क्या जरूरत है? वो कौन सी तो लड़की है वो जो, कह रही है कि उसका वो नहीं हो रहा इससे। अच्छा और मेरा जनाब पासवर्ड अगर मैं बता दूं तो बड़ा खतरनाक काम होता है पासवर्ड तो। अच्छा चलिए, मैं एक मिनट, पासवर्ड इस लेक्चर के बाद मैं आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि मेरे पास पासवर्ड है तो सही। अच्छा चलो ठीक है, मैं करता हूँ। फिर ये लेक्चर थोड़ी देर के लिए स्टॉप करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। आप लोग सब काइंडली ऑनलाइन रहिएगा, आपने जाना कहीं नहीं है। अच्छा जी मैडम, अब मुझे बताइएगा कि आपने कहा एक लड़की पासवर्ड मांग रही है, पासवर्ड मेरे सामने है। पहले मुझे बताएं उस मोहतरमा का नाम क्या है, क्या वो क्लास फेलो है आपकी? जी सर, मरियम नवाज नाम है उसका। मरियम नवाज नाम है, ठीक है। मैं ग्रुप में ये पासवर्ड शेयर कर रहा हूँ, लेकिन काइंडली काइंडली इसको मिस यूज मत कीजिएगा। मेरे ख्याल में अब तमाम स्टूडेंट्स बड़े मुहज्जिब हैं। ये एक टेक्स्ट की फाइल आ गई है, इसके अंदर
ही नहीं है इसके बारे में कुछ भी। अच्छा, बहरहाल ओके सर। जी हाँ, ये टेक्स्ट की फाइल ग्रुप में आ गई है और मैं थोड़ी देर के बाद इसको डिलीट कर दूंगा। उस खातून से कहें कि यहाँ से पासवर्ड देखो, ग्रुप ये क्या कहते हैं क्लास ज्वाइन करो, और उसके बाद मैं विद इन 15 मिनट्स इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है जी, बैक टू द लेक्चर। वापस लेक्चर की तरफ आ जाते हैं। अब में से सब लोग काइंडली जरा एक्टिव रहें। बज़ाहिर आपके लिए ये थोड़ा बोरिंग है, लेकिन जो कुछ मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये ना सिर्फ एग्जाम्स में आपके काम आना है, ये आपके पेपर के सवालों के जवाब है। मैं सवालों के जवाब आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। दूसरी चीज, विलियम शेक्सपियर के साथ क्रिस्टोफर मार्लो को हमने पढ़ना है, और जो कुछ मैं आपको बयान करूँ अगर आप इसको तवज्जो से सुनते जाएंगे, साथ साथ हाईलाइट करते जाएंगे, तो ये डेफिनेटली आपके शॉर्ट आंसर्स भी बनेंगे। अच्छा ठीक है जी, मरियम नवाज साहिबा क्लास में आ चुकी हैं, ज्वाइन कर लिया उन्होंने। Back to lecture. After receiving his degree in June 1587, he went to London, where he became an actor and dramatist for the Lord Admiral's Company. ये एक थिएटर कंपनी थी जो कि ड्रामास परफॉर्म किए करते थे। ये शख्स वहां पर एज एन एक्टर काम करने लगा, लेकिन ये इसकी जाहिरी जॉब थी। बज़ाहिर as an actor he was working, in fact he was a secret service agent. During that same year, both parts of Tamburlaine the Great were performed. Tamburlaine इसकी एक ड्रामा का नाम था जो कि क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा था, on the London stages, catapulting Marlowe into सेलिब्रिटी स्टेटस। और इस ड्रामा के बाद क्या हुआ कि क्रिस्टोफर मार्लो एक सेलिब्रिटी बन गया, लोगों में बड़ा मशहूर हो गया। मार्लो लिव्ड अ रेकलेस लाइफ एंड हैड सेवरल स्क्रैप्स विद द लॉ। रेकलेस लाइफ, ये जनाब इसकी जिंदगी का एक नेगेटिव एस्पेक्ट है कि बड़ी लापरवाही भरी जिंदगी बसर करता था। लड़ाई झगड़े, करप्शन, शराब का इस्तेमाल और कवानीन की पाबंदी ना करना, अक्सर कानून तोड़ना, जुर्म करना, और अक्सर कानून के रखवालों से इसका सामना होता रहता था। In 1591, Marlowe's former roommate, playwright Thomas Kidd, was imprisoned and tortured after authorities found heretical writing in Kidd's room. Kidd insisted, perhaps while being tortured, that the writings belonged to Marlowe, who was known by some to be an atheist. जी हाँ, atheist, जैसे कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि ये शख्स बज़ाहिर क्रिश्चियन था, but he was an atheist, ये मुल्हिद काफिर था, क्रिश्चियनिटी और क्राइस्ट का मुनकिर था, खुदा की भी गुस्ताखी किया करता था। तो जब इसके कमरे की तलाशी हुई, इसका जो रूममेट था बेचारे, उसकी शामत आ गई, पुलिस वालों ने उसकी फेंटी लगाई। वो कहता था भाई ये जो कुछ लिखा है मेरी तहरीर नहीं, ये तो क्रिस्टोफर मार्लो का लिखा हुआ है। आखिर किसी तरह से पता चला कि ये क्रिस्टोफर मार्लो की तहरीर थी, शायद कि उसकी हैंडराइटिंग पहचानी गई थी। Maud was also brought in for questioning and then released. इसके बाद क्रिस्टोफर मार्लो से इसी चीज पे सवालात हुए और बाद में उसको रिलीज कर दिया गया, छोड़ दिया गया। जनाब ये जो अब तक मैंने पढ़ा है आप लोगों के लिए, क्या आपने उसे देखा या नहीं देखा? क्योंकि मैं शायद आपसे स्क्रीन शेयर करना भूल गया था। क्यों जी, ऐसा ही है? अब स्क्रीन आपके सामने आई है, इज दैट सो? जनाब कम से कम बता दो दिया करें कि सर, हाँ कम से कम बता दो देना था कि सर स्क्रीन पे नजर कुछ नहीं आ रहा। सर हाँ, अब स्क्रीन शेयर हो गई है, मैंने डायरेक्ट लेक्चर ओपन कर लिया था, स्क्रीन शेयर नहीं मैंने की थी। बहरहाल ऐसा कोई मसला हो तो मुझे बता दिया करें, बात बात बंदा भूल जाता है। अच्छा खैर, मैं इसको रिपीट तो नहीं कर मुझे रहा, लगा आपको लगा कि मैं सो गया हूँ? अच्छा खैर, स्टोरी
रहे हैं कोई उसकी। जी बिल्कुल, मैं जी ठीक है, मैं क्रिस्टोफर मॉर्लो की लाइफ हिस्ट्री ही बता रहा हूँ, लेकिन जो कुछ मैं बता रहा हूँ ये मैंने टाइप भी किया हुआ है, लिखा हुआ भी है, ये मैं बता चुका हूँ। अब ये है कि मैं इसको थोड़ी देर के लिए हाईलाइट कर देता हूँ, लेकिन मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा बिकॉज टाइम इज शॉर्ट। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, ये मैंने पढ़ के सुनाया और इसको एक्सप्लेन किया है। मॉर्लो was also brought in for questioning and then released। अच्छा जी, क्रिस्टोफर मॉर्लो से भी इस सिलसिले में बात हुई, उससे पूछताछ की गई, फिर उसको छोड़ दिया गया। मॉर्लो's life ended when he was only 29 years old। 29 ईयर, 30 का भी पूरा ना हुआ था कि इसकी जिंदगी खत्म होगी। On the night of May 13, 1593 he was stabbed in the head and probably died instantly। उसे दिमाग में या तो गोली मारी गई थी, स्टैब होता है खंजर मारना, और वो वहीं पर मर गया था 29 इयर्स ऑफ एज में, यानी 30 साल का भी पूरा ना हो सका। इसी हिसाब से इसका जो राइटिंग कैरियर था वो वहीं पे स्टॉप हो गया। हाँ, हिस्टोरियंस कहते हैं कि अगर ये जिंदा रहता 60-70 साल की उम्र पाता, जैसे कि विलियम शेक्सपियर ने लंबी उम्र पाई, तो शायद विलियम शेक्सपियर कुछ ना होता, क्रिस्टोफर मॉर्लो ही सब कुछ होता। विलियम शेक्सपियर शायद के विलियम शेक्सपियर इसलिए है कि रब ने क्रिस्टोफर मॉर्लो को उठा लिया था, अदरवाइज क्रिस्टोफर मॉर्लो विलियम शेक्सपियर से पहले उससे बेहतर काम कर चुका था। The circumstances of his death remained unclear। उसकी डेथ कैसे हुई, इसके हालात क्या थे, इसका किसी को मालूम नहीं है। बट द स्टोरी दैट इट occurred in a barroom fight was later discredited। हाँ, कहा गया कि उसकी डेथ से मुतल्लिक एक कहानी घड़ी गई थी कि जनाब किसी बार रूम में किसी शराब खाने में उसकी लड़ाई हुई थी, उससे झगड़ा किया गया था, लिहाजा वहां वो मारा गया। लेकिन ये कहानी गलत साबित हुई। हकीकत में चूंकि वो एक सीक्रेट सर्विस एजेंट था, तो मुखालिफ जमात ने इसको मार डाला था। जिनके राज ये खोलता था, जिनकी जासूसी ये करता था, उस मुखालिफ जमात ने, पार्टी ने इसको मार डाला था। Some scholars speculate that his death was arranged by secret service men and may have been ordered because he was reported to be a heretic। इस बात को भी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि चूंकि वो सीक्रेट सर्विस एजेंट था, तो वो बाकायदा ऑर्डर्स इशू किए गए थे कि मुखालिफ ग्रुप की तरफ से कि जनाब इसको टारगेट करके मारना है। He was buried in an unmarked grave। और उसकी कब्र का कोई निशान नहीं है, उसकी कब्र को अनमार्क्ड रखा गया था। अब यहाँ पर एक चीज मैं मजीद आपसे शेयर करना चाहूंगा और वो है ब्लैंक वर्स। इसका जिक्र हम आगे पढ़ेंगे, मैं मुख्तसर बयान कर देता हूँ। विलियम शेक्सपियर ने और क्रिस्टोफर मॉर्लो ने दोनों ने मिलकर ड्रामा को ब्लैंक वर्स में लिखा था। ब्लैंक वर्स क्या होती है? ये शायरी की एक शक्ल है जिसको आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, जिसमें हर लाइन का आखिरी लफ्ज अगली लाइन के आखिरी लफ्ज से हम आवाज नहीं होता। यानी ब्लैंक वर्स को आप तरन्नुम के साथ नहीं पढ़ सकते, गा नहीं सकते। ये शायरी है लेकिन इसमें तरन्नुम नहीं है, आप इसको गीत की सूरत में, गाने की सूरत में गा नहीं सकते। ब्लैंक वर्स जितना भी ड्रामा था विलियम शेक्सपियर के जमाने का, शेक्सपियरियन एज का, यानी एल्ज़ाबेथन एज का, वो सारा ब्लैंक वर्स में लिखा गया था। इसकी इब्तिदा क्रिस्टोफर मॉर्लो ने की थी और क्रिस्टोफर मॉर्लो को ब्लैंक वर्स का बादशाह ख्याल किया जाता है। उसके बाद ये फन विलियम शेक्सपियर के हाथ में आता है और उसने भी इसमें बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई। क्रिस्टोफर मॉर्लो के बाद एल्ज़ाबेथन ड्रामा, बेन जॉनसन को हम मुख्तसर सा पढ़ेंगे। बेन जॉनसन भी उसी दौर का राइटर था। बेन जॉनसन was born in 1572 in Westminster near London। His stepfather was a master bricklayer and Johnson briefly took up his trade in his youth। अच्छा जी, इस शख्स ने जवानी में तिजारत की थी। He also stepped
a brief time as a soldier, spent a brief time as a soldier, returning to England and marrying someone prior to 15 and marrying sometime prior to 1592. Upon his return to England, Johnson became an actor and by 1597 was working as a dramatist for the theatrical entrepreneur Philip हैंसलॉफ. इसकी जिंदगी के मुख्तसर से हालात बयान किए गए हैं कि जनाब इसकी पैदाइश हुई, इसने एक ताजिर के तौर पर काम किया, कुछ अर्सा इसने एक सोल्जर के तौर पर भी काम किया, फिर वो ड्रामेटिस्ट बन गए, किसी ड्रामा कंपनी को इसने ज्वाइन कर लिया. जॉनसन्स फर्स्ट प्ले को written with Thomas Nash 1597 was The Isle of Dogs. ओके, लेक्चर खत्म होने में चंद सेकंड्स बाकी, अगर ये मैं ना खत्म कर सकूं तो काइंडली इसको खुद से पढ़ लीजिएगा, लेकिन बेन जॉनसन को पढ़ना जरूरी है. मैंने जो पेपर तैयार करना है तो इन तीनों का जिक्र करना है पेपर में, इनसे मुतालिक सवाल पूछने हैं. इट वाज डीम्ड ऑफेंसिव एंड लैंडेड जॉनसन इन जेल फॉर अ ब्रीफ टाइम. देन इन 1598 जॉनसन वाज अरेस्टेड फॉर किलिंग अ फेलो एक्टर इन अ ड्यूल. यानी ये शख्स भी कोई अच्छा बंदा नहीं था. एक तो इसने अपने ही साथ काम करने वाले एक बंदे को कत्ल कर दिया, दूसरा इसका जो पहला ड्रामा था द आइजल ऑफ डॉग्स वो कुछ ऐसा गैर इखलाकी था कि इसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, बाकायदा इसको सजा मिली. दैट सेम ईयर